explained yesterday? Ma'am, two. Can you name these two? Transitive and intransitive verb. Okay, Jihadi will tell me what are the transitive verbs. No, ma'am, transitive verbs. What are the transitive verbs? Ma'am, एक second. Are you looking it up on the Google? Hadi. Okay, Saad, can you tell me, bache, what are the transitive verbs? मैम जिसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो. Very well done. And what is the intransitive verb? मैम जिसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ना हो. Okay, very well done. Can we change the intransitive verb sentences into passive form? No, passive ma'am. voice में हम change कर सकते हैं. साथ क्या हम change कर सकते हैं बच्चे? Passive voice ma'am. में passive No, ma'am. form में intransitive verbs को नहीं कर सकते. Very well done. Now बच्चे, I will explain the third type of verb, which is the auxiliary verb, which is famous as and called as helping verb. The most famous helping verbs are is, am, are, was, were, has, have, do, does, and did. Is that clear? Are you getting me, boys? Ayan Ali? Yes, ma'am. Ji bachi, are you getting me or no? Yes, ma'am. Where is Hadi? Ma'am, can you repeat the examples that you gave of auxiliary verb? Auxiliary verb. Auxiliary verb, famous auxiliary verbs are is, am, are, has, have, do, does, and did. Okay? Okay, ma'am. Why these are the famous auxiliary verbs? Because these are used to show the tense. And these are used with the main verbs. Okay? So that is why these are the very famous auxiliary verbs. Is that clear? Been, being, be are also auxiliary verbs, but they are not very famous because we use them only in the passive voice. Is that clear? Yes. Okay, ji. Let me give you the example. She does not perform well. If I say, she does not perform well, right? So where is the auxiliary verb? Ma'am, does not. मैम Very well done. She does not Does not. perform well. Now, does is the auxiliary verb. Not is the word which is used for using negation or bringing negation in the sentence. Okay? Hadi Baji, are you getting me? Today I am going to explain the different types which are left. So I am explaining auxiliary verb. The famous auxiliary verbs are is, am, are, has, have, do, does, and did, right? Now I have written a sentence. You have to tell me where is the auxiliary verb in this form, in this sentence. She does not perform well. Adi, where is the auxiliary verb, bache? Helping verb. Ma'am, does. Very well done. Very well done. Does is the auxiliary verb in this sentence. Okay, write down the another one. Has she prepared the food? Now tell me where is the auxiliary verb, helping verb. Who will Ma'am, tell me? Has. Ma'am, Very has. well done. Okay, very well done. Now if I say she didn't copy the sentence. Now where is the auxiliary verb? Didn't. Did is the auxiliary verb. Not is a word which is used to show negation.
in the sentence. Okay, not is not included in the helping verb. Why do we call these words, these जो words हैं इनको हम helping verbs क्यों कहते हैं? Why do we call these words helping verbs? Why? हमने और कोई नाम क्यों नहीं? Ma'am, they help us to show the tense. They help us the main verb. Okay, that is why we call these words the helping verbs. Is that clear? Okay, ji. Now, bache, let's move to the next kind, which is the modal verbs. Do you know modal verbs? What are the modal verbs? Modal verbs are actually to express abilities, possibilities, permissions, obligations, and past habits. Okay, these are a kind of helping verb. Modal verbs are also a kind of helping verb. हेल्पिंग वर्ब इनको क्यों कहा जाता है मॉडल वर्ब्स को? क्योंकि ये भी मेन वर्ब के साथ यूज होते हैं, ये अलहदा से कभी भी यूज नहीं होंगे. ओके, इज दैट क्लियर? मॉडल वर्ब्स आर आल्सो अ काइंड ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब, ये भी हेल्पिंग वर्ब्स है. फॉर एग्जांपल, कैन, कुड, may, might, used to, and so on and so far. ठीक है, यहाँ पर ढेर सारे ऑक्सिलरी वर्ब हैं हमारे पास जिनको हम मेन वर्ब के साथ यूज करते हैं ताकि हम शो कर सकें डिफरेंट चीजें. क्या क्या चीजें हम शो कर सकते हैं? एबिलिटीज, possibilities, permission, obligations, past habits, etc. For example, if I say I can sing, for example, if I say I can sing, what is it showing? ये क्या शो कर रहा है? हादी, can you tell me ये can क्या शो कर रहा है? मैम ये वो शो कर रहा है इसका मैम ऑक्सिलरी वर्ब. नहीं, ये मॉडल वर्ब है, लेकिन ये शो क्या कर रहा है? एबिलिटी शो कर रहा है. परमिशन के लिए हम यूज कर रहे हैं इसको, या ये मैम आपके एबिलिटी शो पास कर एबिलिटी शो शो कर रहा है कि आई कैन जी मैम. सिंग, आई कैन राइट, आई कैन प्ले गिटार. ठीक है, तो जो कैन होता है ये मॉडल वर्ब है और इसको हम शो करते हैं कि हम इसको यूज करते हैं ताकि शो करें हम अपनी एबिलिटी. इज दैट क्लियर? व्हाई डू वी यूज मे आई कम इन? Ma'am, permission. Ma'am, permission. यस, परमिशन Are you लेने के get- लिए. वेरी वेल डन. अब आपने देखा कैन के बाद मेन वर्ब सिंग आया, मे के बाद मेन वर्ब कम आया. सो मे वी आर यूजिंग हियर टू सीक परमिशन. हम परमिशन लेने के लिए यहाँ मे को यूज कर रहे हैं. तो याद रखिए मॉडल वर्ब्स भी हेल्पिंग वर्ब्स की तरह होते हैं, बट वी यूज देम नॉट टू शो द टेंस बट टू शो डिफरेंट थिंग्स लाइक पॉसिबिलिटीज, परमिशन, एबिलिटी. इज दैट क्लियर? ओके जी. इफ आई से आई used to play guitar. Now tell me why I have used to and what is it showing? Permission, ability, possibility, obligation, past habit, what? Ma'am, Ji past Ayan habit. Ali. Past Very habit. well done. Very well done. Okay, Ji. Now if I write another one, I have to go now. Now tell me have to is showing what? Ma'am, obligation. Obligation, need. Okay, if I say I must write, now must is used to Ma'am, ये भी obligation ही है. obligation है, but strong obligation है. ठीक है, you must do this. So modal verbs are used to show different things including possibilities, permissions, obligations, past habits. अच्छा, do remember boys, sometimes we also use could I go out. Now, why I have used this could here instead of may? Ma'am, it is not permission, it is a possibility. Very well. Who said it? Very well done. अगर आप could यूज करेंगे ना तो ये अगले की चॉइस पर है कि वो आपको छोड़ता है कि नहीं और वो पॉसिबिलिटी है छोड़ भी दे ना भी छोड़.
ठीक है। अच्छा, दूसरी थिंग ये है कि कुड हम हमेशा, अब जैसे फॉर एग्जांपल आई कुड प्ले गेम्स, राइट। अब ये कुड मैंने क्यों यूज किया, व्हाई आई हैव यूज कुड इंस्टेड ऑफ कैन, मैंने कैन क्यों नहीं यूज किया, कुड क्यों यूज किया? जी हादी, कैन यू टेल मी बच्चे? मैम वो शो करने के लिए क्या था मैम वो अबिलिटी शो कर रहा है, आई नो ability show दैट, कर रहे हैं। very well done, but instead of writing can, why I have written could here? मैम वो पहले भी हमने कोड लगाया था ना ताकि वो उसके शो कर रहे हो ability। क्या शो कर रहे हैं हाथी? मैम पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी शो कर रहा है, आई कुड जी प्ले गेम्स। मैं जी कुड प्ले गेम मैं कर सकता हूँ। हाँ, वेरी गुड, लेकिन डू रिमेम्बर बच्चे, मोस्ट ऑफ द टाइम कैन इज यूज्ड इन द प्रेजेंट टेंस। जब आप प्रेजेंट के टेंस यूज करते हो, जनरल वे में आप बताते हो कि आप ये एक्टिविटी कर सकते हो, आपके अंदर ये एबिलिटी है, देन यू यूज कैन। बट इफ यू टॉक अबाउट पास्ट, देन यू यूज कुड। कुड इज द पास्ट टेंस ऑफ कैन। इज इट क्लियर? इसी तरह मे की पास्ट टेंस माइट है, लेकिन व्हाई डू वी यूज माइट? हम माइट क्यों यूज करते हैं? Let me write a sentence. She might be in the garden. Why I have written might here and what is it showing? Might क्या show कर रहा है ये modal verb? Possible. नहीं, Ma'am, it's not possibility. showing the possibility. It is showing the doubt. It is showing the doubt. She might be in the garden. You are not sure that कि she must be in the garden. You are telling that कि she might be in the garden or maybe in the kitchen. तो जहां माइट यूज होगा वहां आप डाउट शो करते हो। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर और नो? मैम डाउट और पॉसिबिलिटी में क्या फर्क है? पॉसिबिलिटी में ये है कि आप पॉसिबल होता भी है बाजुकात और पॉसिबल नहीं भी होता। डाउट में ये होता है कि आपके पास 100% श्योरिटी नहीं होती। ठीक है, पॉसिबिलिटी तो कुछ भी कर सकते हो ना आप। मिसाल के तौर पर अगर आपको मैं कहती हूँ, जैसे आप कहते हो कि आई कुड प्ले गेम्स, अब ये पॉसिबिलिटी है कि आप खेल भी सकते हो और हो सकता है नहीं भी खेल सकते हो। लेकिन जो माइट यूज करते हैं, माइट इसलिए यूज किया जाता है कि जब आपको 100% श्योरिटी नहीं होती। हम मस्ट यूज करते हैं इसलिए कि हमारे पास 100% श्योरिटी होती है। तो मॉडल वर्ब्स हमने अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन यूज करने होते हैं। व्हाई आई एम टेलिंग यू एंड गिविंग यू एग्जांपल ऑफ डिफरेंट मॉडल वर्ब्स, बिकॉज यू मस्ट नो वेयर यू हैव टू यूज विच मॉडल वर्ब। ठीक है, जहां पर आपके पास डाउट होता है वहां आप माइट यूज करते हो, जहां आपके पास पॉसिबिलिटी होती है वहां पर आप कुड भी यूज कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा जहां आप 100% श्योर होते हो वहां आप मस्ट यूज करते हो, जहां आप ओल्ड हैबिट शो करते हो वहां आप यूज टू शो करते हो। ठीक है, जहां परमिशन के लिए यूज करते हो वहां आप मे यूज करते हो। शुड जो है वो ऑब्लिगेशंस के लिए यूज होता है। ठीक है, एडवाइस के लिए यूज होता है। दिस इज द पोलाइट वे, right? For example, I say I should offer my prayers. Is that clear? Ayan Yes, Ali, ma'am. are you getting me, बच्चे? Yes, ma'am. अच्छा, मॉडल वर्ब्स आर नॉट दैट मच डिफिकल्ट और इनका कोई खास इस तरह का पर्पस है भी नहीं। अगर एग्जाम्स में भी अगर आता है तो यू मस्ट नो कि ये कौन सा वर्ब है। ये इसलिए आपको करवाया जाता है कि यू मस्ट अंडरस्टैंड एंड आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ वर्ब जो वहां यूज की जाती है। ठीक है, इज दैट क्लियर बच्चे? ताकि आपके पास अगर एमसीक्यू कोई आ जाता है तो आपको पता हो कि ये माइट भी मॉडल वर्ब है, कुड भी मॉडल वर्ब है, मे भी मॉडल वर्ब है, कैन भी मॉडल वर्ब है। यूज टू, हैव टू, हैड टू, मस्ट, शुड, वुड, ये सारे मॉडल वर्ब्स हैं। इज दैट क्लियर? इज दैट Yes, क्लियर और ma'am. नो बच्चे? सो Yes, शुड वी मूव टू द नेक्स्ट वन? शुड वी मूव टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ वर्ब? Yes, ma'am. अच्छा जी, लिंकिंग वर्ब। व्हाट इज दिस वर्ड लिंकिंग सजेस्टिंग यू? ये लिंकिंग वर्ब क्या सजेस्ट कर रहा है आपके ख्याल में? लिंकिंग वर्ब क्या हो सकता है? डू यू हैव एनी आइडिया? कैन एनीबॉडी टेल मी? That will be creating a link between two sentences or ओके, वेरी वेल डन, यू आंसर्ड इट। और किसको पता है लिंकिंग वर्ब क्या होता है? मैम जो लिंक क्रिएट करे दो किसके जुमलों के दरमियान? बीच
दो जुमलों जुमलों में। के दो दरमियान। पेज के दरमियान जो लिंक क्रिएट करे। अच्छा, अयान अली क्या आप बता सकते हैं बेटा? Ma'am, I think between ma'am two nouns. टू नाउन्स तो वो कंजंक्शन नहीं होता जो नाउन्स के दरमियान या वर्ब्स के दरमियान लिंक क्रिएट करता है, उसको तो हम कंजंक्शन कहते हैं, जो ज्वाइन करता है। ओके, लेट मी टेल यू। बच्चे, लिंकिंग वर्ब इज एक्चुअली दोज वर्ब्स विच आर टू बी वर्ब्स। आपको पता है टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब्स क्या होती हैं? डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब्स? Do you have any idea about to be forms? There are 7 be forms: is, am, are, was, were, be और been। याद रखिए, जो ये फॉर्म्स हैं जो मैंने अभी बोली, is, am, are, was, were, be and been, जब ये सारी 7 फॉर्म्स आपके पास मेन वर्ब का काम करें, फॉर एग्जाम्पल, आई एम ए टीचर। नाउ बॉयज, look at this sentence. Look at this sentence which I have underlined. I am a teacher. Now this am, it is a helping verb. ठीक है, am आपको अभी मैंने बताया ना वो ऑक्सिलरी वर्ब है, ऐसे ही बोला ना मैंने। अयान अली, हादी, आप सुन रहे हो? लेकिन यहां पर ये हेल्पिंग वर्ब का काम नहीं दे रहा, यहां पर ये एम मेन वर्ब का काम दे रहा है, बिकॉज इट इज क्रिएटिंग अ लिंक विद द सब्जेक्ट। ये जो टीचर है, अ टीचर, ये लिंक है सब्जेक्ट का, एंड इट इज क्रिएटेड विद दिस ऑक्सिलरी वर्ब एम, दैट इज व्हाई दिस एम इज द मेन वर्ब हियर। आपके बोर्ड के एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन भी आ सकता है एमसीक्यू में, कि वो जस्ट अंडरलाइन करेंगे एम को और इसी तरह का सेंटेंस होगा, और वो एम को अंडरलाइन करके पूछेंगे कि इज दिस अ मेन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल वर्ब और रेगुलर वर्ब। तो फिर आपने उस वक्त बताना है कि दिस इज द मेन वर्ब, बिकॉज इट इज अ लिंकिंग वर्ब। और लिंकिंग वर्ब में जो ऑक्सिलरी वर्ब हैं, जब वो मेन वर्ब का काम देते हैं तो वो लिंकिंग वर्ब बन जाता है, बिकॉज इट इज क्रिएटिंग अ लिंक विद द सब्जेक्ट। ये जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है, इसका लिंक क्रिएट कर रहा है सब्जेक्ट के साथ। इज दैट क्लियर? डिड यू गेट मी और नो बच्चे? सो दैट इज व्हाई दीज वर्ब्स आर कॉल्ड लिंकिंग वर्ब्स। आदि समझ आई बच्चे? जी मैम। आदि समझ आ रही है? अच्छा, जी मैम। इसी तरह मैं कहती हूं वेट, हाँ जी, यहां देखिए, अच्छा जी, अब मैं कहती हूं आपको, शी हैज बिकम ए डॉक्टर। नाउ टेल मी बच्चे, व्हाट इज बिकम हियर? व्हाट इज बिकम हियर? मैम लिंकिंग वर्ब। हाउ? मैं वो उसका शी मैम वो उसके सब्जेक्ट और उसके वो एडिशनल इंफॉर्मेशन के बीच में लिंक क्रिएट कर रहा है। वेरी वेल डन। और ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन को हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन तो मैं समझाने के लिए बोलती हूँ, इसको प्रेडिकेट कहते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इसको प्रेडिकेट। प्रेडिकेट कहते हैं। प्रेडिकेट का मतलब क्या होता है? इट मीन्स न्यूज, यानी किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन, न्यूज, प्रेडिकेट कहते हैं। तो जो एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है उसको एक्चुअली हम प्रेडिकेट कहते हैं। जो लिंकिंग वर्ब्स होते हैं उनको हम इसीलिए लिंकिंग वर्ब कहते हैं क्योंकि वो प्रेडिकेट के साथ लिंक क्रिएट करते हैं सब्जेक्ट का। यहाँ पर बिकम इसलिए लिंकिंग वर्ब है क्योंकि वो डॉक्टर का लिंक क्रिएट कर रहे हैं शी के साथ, कि व्हाट हैज शी बिकम? शी हैज बिकम अ डॉक्टर। लाइक व्हाट एम आई एम अ टीचर। तो एम वहां लिंक क्रिएट कर रहा है। तो आपके पास सिर्फ ये भी नहीं है, और भी होते हैं लिंकिंग वर्ब्स। मैं आपको एक्सरसाइज करवाऊंगी तो आपको साथ साथ मैं वो फिर बता दूंगी, ठीक है? लेकिन ये मस्ट है, ये 7 तो होते ही होते हैं लिंकिंग वर्ब। इज दैट क्लियर?
अयान अली समझ आ रही है बच्चे? हादी 7। अच्छा जी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर। शुड वी मूव टू द नेक्स्ट टाइप? यस और नो? यस जाए बच्चे नेक्स्ट टाइप पर। अच्छा जी, फिर हमारे पास आ जाते हैं स्टेट वर्ब्स या स्टेटिव वर्ब्स। ठीक है, स्टेट किसको कहते हैं? कंडीशन को। ठीक है, तो जब ऐसे वर्ब्स जो एक्शन वर्ब्स नहीं होते, दोज वर्ब्स विच आर नॉट एक्शन वर्ब्स, जो एक्शन शो नहीं करते, स्टेट ऑफ बीइंग शो करते हैं। हादी क्या हो गया बच्चे? जो स्टेट ऑफ बीइंग शो करते हैं, यानी किसी बंदे का स्टेट शो करते हैं कि हाउ दैट पर्सन इज, इन विच कंडीशन द पर्सन इज। समझ आ रही है? उस बंदे का स्टेट शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई फेल्ट बैड अबाउट दैट आइडिया। अब क्या यहां पर ये जो वर्ड फेल्ट है, क्या ये मेरा एक्शन शो कर रहा है? ये फेल्ट जो है, क्या ये मेरा एक्शन शो कर रहा है या मेरा स्टेट बता रहा है कि हाउ आई एम फीलिंग? मैम स्टेट। स्टेट स्टेट शो कर रहा है। तो स्टेट ऐसे वर्ब्स जो स्टेट शो करते हैं किसी बंदे का कि हाउ इज दैट पर्सन फीलिंग, वो एक्शन शो नहीं कर रहे सब्जेक्ट का, तो वो कहलाते हैं स्टेटिव वर्ब्स या स्टेट वर्ब्स। इज दैट क्लियर? बॉयज, Yes, आर ma'am. यू गेटिंग मी और नो? यस मैम। समझ आ रही है? फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक और सेंटेंस लिख कर देती हूँ। शी वॉन्ट्स टू प्ले ऑनलाइन, राइट? अब want जो है, is it showing the state of she or is it showing an action of she? स्टेट। मैम स्टेट State. want, देखो वो चाह रही है कि वो ऑनलाइन खेले, ठीक है, तो ये उसका स्टेट है, उसकी एक विश है, ठीक है, वो एक्शन नहीं कर रही। अगर मैं कहती हूं she plays online, समझ आ रही है? ओ माय गॉड, वेट बच्चे, शी प्लेज ऑनलाइन। अब ये प्लेज शी का एक्शन शो कर रहा है कि नहीं? यस। कर रहा है। तो फिर कर रहा है वॉन्ट्स में कर रहा है ना? अयान अली, आप भी समझ आ रही है आपको बच्चे? यस मैम। शी वॉन्ट्स टू प्ले ऑनलाइन, यहाँ उसका स्टेट शो कर रहा है, इसीलिए वॉन्ट्स स्टेटिव वर्ब है, स्टेट वर्ब है। लेकिन जो प्लेस है वो एक्शन वर्ब है, क्योंकि वहां पर वो शी का एक्शन शो कर रहा है कि व्हाट इज शी डूइंग, व्हाट शी डज। इज दैट क्लियर? Yes or no, boys? Yes, ma'am. Yes. So should I explain it more or should I go to the next one? मैम नेक्स्ट। Next one. Okay, ji. Then the next kind is regular verbs. What are the regular verbs? Regular verbs are, for example, I write a verb, play. ठीक है? What is the second form of play? प्लेड। Played. What is the third form of play? प्लेड। Played. Play. It did not change the base of the root word of this word. जो रूट वर्ड है, जो प्ले है, इट डिड नॉट चेंज इट फॉर्म, उसने अपनी फॉर्म नहीं चेंज की, जस्ट वी हैव एडेड ईडी। समटाइम वी ऐड डी और समटाइम वी ऐड ईडी, राइट? सो दोज वर्ब्स व्हिच डू नॉट चेंज द फॉर्म, इट मींस दैट दीज वर्ब्स आर रेगुलर वर्ब्स। वो वर्ब जो अपनी फॉर्म नहीं चेंज करते, वो रेगुलर वर्ब्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लाफ, लाफ की सेकेंड फॉर्म क्या है? लाफ्ट। थर्ड फॉर्म क्या है? लाफ्ट। हमने जस्ट क्या ऐड किया? हमने ऐड किया ईडी के साथ, तो ये हमारे पास आ गए रेगुलर वर्ब्स। समझ आई? दीज आर नॉट वेरी डिफिकल्ट, ये बहुत आसान है, ठीक है। अब मैं आ जाती हूँ नेक्स्ट पर, इररेगुलर वर्ब्स। इररेगुलर वर्ब्स कौन से होते हैं? irregular verbs are those verbs which change their form and kind। मतलब जैसे मैं कहती हूँ go, ठीक है, एक वर्ब है go, इसकी सेकंड फॉर्म क्या है? went। वेंट। थर्ड फॉर्म क्या है? गॉन। gone। तो इन्होंने अपनी फॉर्म चेंज कर दी, रूट वर्ड चेंज हो गया, go से went चला गया, went से gone चला गया। इसी तरह मैं कहती हूँ fly, flew,
flown। समझ आ रही है कि नहीं आ रही बच्चे? आ रही है ना? ऐसे वर्ब जो अपना रूट जो है नहीं चेंज करते, अपना फॉर्म नहीं चेंज करते, वो रेगुलर वर्ब्स कहलाते हैं। और ऐसे वर्ब्स जो अपनी फॉर्म चेंज कर देते हैं और कंप्लीटली एक न्यू वर्ड इंट्रोड्यूस करवाते हैं, वो आपके पास होते हैं इररेगुलर वर्ब्स। जी मैम फॉर एग्जांपल cut remains cut, eat हाँ remains जी, eat। हाँ, No, तो वो फिर क्या होंगे? वो मैम आपके पास ये रेगुलर होंगे, वो रेगुलर वर्ब्स होंगे आपके पास, क्योंकि उन्होंने अपनी फॉर्म नहीं चेंज की। ठीक है? जो वर्ब अपनी फॉर्म नहीं चेंज करते, चाहे उनके साथ डी लगता है, ईडी लगता है या कुछ भी नहीं लगता, तो वो हमेशा रेगुलर ही रहेंगे, इररेगुलर नहीं होंगे। इररेगुलर वो होंगे जो अपनी फॉर्म चेंज कर देंगे। ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन, ये भी आपके पास इररेगुलर है। ठीक है? आर यू गेटिंग मी बच्चे? डिड यू गेट इट? yes डिड मैम यू गेट द लिंकिंग वर्ब, मॉडल वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब? yes or no? yes मैम Did you understand state verbs, regular verbs, irregular verbs? ठीक yes है, मैं मैम एंड में आपको अप्रेजल लूंगी और आपको एग्जांपल्स भी दूंगी। ठीक है? इसलिए परेशान नहीं हो, अगर आपको अभी थोड़ी सी कंफ्यूजन है तो आपके लिए फिर आसानी हो जाएगी। नो प्रॉब्लम। जी मैम। डू यू नो व्हाट द फ्रेजल वर्ब्स आर? हैव यू एवर यूज्ड फ्रेजल वर्ब्स इन योर स्पीच? अच्छा जी, लेट मी एक्सप्लेन। फ्रेजल किस वर्ड से निकला है? फ्रेज से। ठीक है? और वर्ब किससे निकला है? वर्ब से। तो फ्रेज क्या होता है? मोर देन वन वर्ड। फ्रेजल वर्ब मीन्स व्हेन यू हैव टू वर्ब्स टुगेदर। समटाइम्स एक उसमें टू वर्ड्स टुगेदर, एक वर्ब होता है और एक आपके पास प्रेपोजिशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, वॉच आउट, आपके पास वॉच वर्ब हो गया, आउट आपके पास प्रेपोजिशन हो गया। इज दैट क्लियर? सो when two words are together, one is verb and the second one is preposition, it becomes a phrasal verb. And the phrasal verbs do not give you the literal meaning. उनका मीनिंग वो नहीं होता जैसे नजर आ रहा है। अब वॉच आउट का क्या मतलब है? देखना, बाहर देखो, वॉच आउट, बाहर देखो, लेकिन ये लिटरल मीनिंग नहीं देते। वॉच आउट का मतलब है टू बी केयरफुल, बीवेयर। ठीक है? तो फ्रेजल वर्ब हमेशा दो वर्ड से मिलकर बनते हैं, जिसमें एक आपके पास वर्ब होता है और एक आपके पास प्रेपोजिशन होता है। इज दैट क्लियर? और फ्रेजल वर्ब हमेशा चेंज मीनिंग देते हैं, जो उसका लिटरल मीनिंग होता है, जिसको देखकर लगता है वो वैसा मीनिंग नहीं देते। ब्रेक आउट का क्या मतलब है? डू यू नो द मीनिंग ऑफ ब्रेक आउट? इट इज अ फ्रेजल वर्ब। इसका मतलब है तोड़ के फेंक दिया। ब्रेक आउट का मतलब है स्प्रेड। ठीक है? द डिजीज ब्रोक आउट इन द सिटी, द डिजीज ब्रोक आउट इन द सिटी। देयर आर प्लेंटी ऑफ फ्रेजल वर्ब्स। ठीक है? तो फिर आप जब यूज करोगे, ये भी आपके 9th में नहीं है, ये 10th में है, लेकिन चूंकि ये टाइप थी वर्ब की तो मैंने आपको समझा दी। ठीक है बच्चे? लेकिन यू मस्ट नो अबाउट द फ्रेजल वर्ब, के फ्रेजल वर्ब होता क्या है। अच्छा बच्चे, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, दैट इज कॉल्ड द फाइनाइट वर्ब्स। फाइनाइट वर्ब्स आर एक्चुअली the verbs which tell you the tense. It is a verb that has a subject and it shows you the tense of that sentence. For example, मैं आपको sentence लिख कर देती हूँ। John was cooking. Now, where is the subject? Where is the subject बच्चे in this sentence? जॉन आगे मैम। John। जॉन। ठीक है? अब इस सेंटेंस में आपके पास John आ गया। Was cooking क्या है? कौन सा टेंस है ये? मैम पास्ट कंटिन्यूअस मैम पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस। अब आपके पास आ गया सब्जेक्ट और जो कोई एक्शन कर रहा है, और ये आपके पास आ गया फाइनाइट वर्ब, क्योंकि ये आपको टेंस बता रहा है कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। मैम इज इट क्लियर? इसके अंदर ये एज ए लिंकिंग वर्ब भी तो यूज हो रहे हैं ना was नहीं, ये लिंकिंग वर्ब नहीं यूज हो रहा। लिंकिंग वर्ब में और इस वर्ब में
वॉज में क्या फर्क है? देखो बेटा, यहाँ पर ये प्रोग्रेसिव टेंस शो कर रहा है, जो लिंकिंग वर्ब है उसमें वो टेंस नहीं शो करता, ठीक है, उसमें वो आपका प्रोग्रेसिव टेंस नहीं शो करेगा कि कोई एक्शन कंटिन्यूअस है, वो ये शो नहीं करता लिंकिंग वर्ब में। यहाँ देखिए, आई एम अ टीचर, क्या ये कोई एक्शन चल रहा है मुसलसल? आई एम अ टीचर नहीं चल रहा ना। अगर मैं कहती आई एम टीचिंग तो फिर वो प्रोग्रेसिव टेंस होता, पास्ट या प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता, ठीक है। जैसे यहाँ पर चूंकि एक एक्शन चल रहा है, कुकिंग हो रही है, जॉन कुकिंग कर रहा है, इसलिए ये पास्ट कंटिन्यूअस है। इज दैट क्लियर है अली? हादी, Yes, इज दैट ma'am. क्लियर बच्चे? ओके जी, नेक्स्ट वन Yes, मैं ma'am. आपको एक और सेंटेंस लिख कर देती हूँ। जेम्स कुक्स डिलिशियस फूड। अब मुझे बताइए यहाँ पर सब्जेक्ट कहाँ है? वेयर इज द सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस बच्चे, विच आई हैव अंडरलाइंड राइट नाउ? Hadi, can you tell me where is the subject in this sentence? Ma'am, James. James. And where is the verb? Ma'am, cooks. Cooks. Ab now cooks is telling you about which tense? S और ES लगा है, Present, ma'am. Present Present. indefinite. कौन सा Present. प्रेजेंट टेंस? प्रेजेंट में तो Indefinite. चार टेंसेस हैं, Hmm. ये कौन सा है? Indefinite. इनडेफिनेट सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो जो टेंस बताएगा आपको, वो आपके पास वर्ब फाइनाइट वर्ब कहलाएगा। जैसे यहाँ पर कुकिंग, वॉज कुकिंग फाइनाइट वर्ब था, यहाँ पर कुक्स फाइनाइट वर्ब है। अब मैं आगे जाती हूँ, एक और सेंटेंस लिखती हूँ। आई हैव ईटन फूड। अब बताइए मुझे जी, अयान अली बताएंगे इसमें सब्जेक्ट कहाँ है? Ma'am, I आई है, और वर्ब कहाँ है? eaten. Have हैव eaten. ईटन हो गया, वेरी वेल डन। अब ये कौन सा टेंस बता रहे हैं आपको? Ma'am, present perfect. प्रेजेंट परफेक्ट बता रहे हैं। इट मीन्स दैट सब्जेक्ट भी है और सब्जेक्ट का एक्शन भी बताया जा रहा है कि वो प्रेजेंट परफेक्ट का एक्शन है, तो ये आपके पास हैव ईटन फाइनाइट वर्ब आ गया। इज दैट क्लियर बच्चे? ओके, नाउ लेट्स मूव टू द इनफाइनाइट वर्ब्स। इनफाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं? इनफाइनाइट वर्ब्स डू नॉट टेल यू अबाउट द टेंस, डू रिमेंबर। इनफाइनाइट वर्ब्स आपको टेंस नहीं बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल, बॉइलिंग water is not good to drink। अब मुझे बताइए कि यहाँ पर जो मैंने बॉइलिंग वाटर यूज किया है, यहाँ पर मैंने वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज किया है, क्या ये आपको प्रोग्रेसिव टेंस के बारे में बता रहा है कि ये कंटिन्यूअस टेंस चल रहा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है ये बॉइलिंग? No, ma'am. Ma'am, it नहीं is a है, type of hypothesis. इट इज अ टाइप ऑफ। Hypothesis, ma'am. अच्छा, तो ये फिर क्या होगा? व्हाट डू यू कॉल इट? व्हाट इज द नेम ऑफ इट? What is the name of it, बच्चे? Ma'am, of the sentence or the verb? Finite verbs. Okay, let me explain infinite verbs again. बच्चे, infinite verbs are also called non-finite verbs और verbals. ठीक है, इनको verbals भी कहते हैं, जिसमें हमारे पास gerunds, participles and infinitives होते हैं। gerunds क्या होता है? Present participle when they act as an adjective, as when they act as a subject and act as an object, then they are called the gerunds। ठीक है। पार्टिसिपल आपके पास दो तरह के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, ये मैं आपको डिटेल में फिर बाद में इंशाल्लाह करवाऊंगी, जब मैं आपको ये वर्बल्स करवाऊंगी। अभी मैं आपको चूंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच करवा रही हूँ, इसलिए मैं आपको ये डिटेल में नहीं करवाती। पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच खत्म हो जाए तो फिर मैं आपके पास सबसे पहले जेरेंड्स और पार्टिसिपल्स करवाऊंगी। ठीक है, आपके पास तीसरा है इन्फिनेटिव्स। इन्फिनेटिव्स क्या होते हैं? टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है हमारे पास। आपने देखा होगा, अक्सर आपने बुक्स में भी चेक किया होगा, कहते हैं जैसे एक सेंटेंस है, मैं लिखती हूँ सेंटेंस को यहाँ, आई वॉन्ट टू गो आउट।
अब यहाँ पर आपके पास सब्जेक्ट आ गया आई, वांट आ गया मेन वर्ब। अब गो आपके पास मेन वर्ब नहीं है, क्यों? क्योंकि इससे पहले टू लगा है, ये इन्फिनिटिव है। याद रखिए वो वर्ब जिसकी फॉर्म आप उस सेंटेंस में चेंज नहीं कर पाते। अब आप यहाँ पर अगर वांट को वांटेड करना चाहो, वांटेड कर सकते हो ना? कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? ठीक है, मैं सेंटेंस को चेंज करूं तो मैं कर सकती हूँ ना, आई वॉन्टेड टू गो आउट। लेकिन क्या मैं गो की फॉर्म चेंज कर सकती हूँ? आई वॉन्ट टू गो या वेंट आउट, क्या मैं चेंज कर सकती हूँ? नहीं कर सकती। तो याद रखिए, ऐसे वर्ब जिनकी फॉर्म आप चेंज नहीं कर सकते और उनसे पहले टू लगता है, तो वो इन्फिनेटिव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं जी बॉयज? व्हाट आर दे कॉल्ड? Infinitive. Infinitives. इन्फिनेटिव कहलाते हैं। और याद रखिए, इन्फिनेटिव में हमेशा मेन वर्ब के बाद, मेन वर्ब से पहले टू लगता है। टू के अलावा कोई प्रपोजिशन नहीं लगेगा, टू लगेगा। ठीक है, अगर मैं एक सेंटेंस लिखती हूं, आई एम गोइंग टू स्कूल। नाउ टेल मी, डिड आई यूज इन्फिनेटिव इन दिस सेंटेंस? अयान अली, हादी जी, who will tell me, did I use any infinitive टू in मैम। this sentence? No, ma'am. अच्छा, हादी कह रहे हैं टू यूज किया है। बेटा टू तो यूज किया है, लेकिन क्या टू के बाद नहीं मैंने वर्ब यूज किया है? नहीं मैम। तो फिर ये इन्फिनेटिव तो ना हुआ ना। नहीं मैम। तो याद रखिए, यही कंफ्यूजन होती है, टू के बाद जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी होगी तो वो हमेशा इन्फिनेटिव होगा। अगर टू के बाद नाउन लगा होगा, जैसे ये स्कूल है, तो वो इन्फिनेटिव नहीं होगा, वो टू का यानी प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। इज दैट क्लियर? अच्छा जी, जेरेंड क्या है? जेरेंड मैं आपको बताती हूँ, व्हेन यू यूज वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एज अ सब्जेक्ट, एज एन ऑब्जेक्ट और एज एन एडजेक्टिव, ठीक है, तो वो जेरेंड कहलाता है। लेकिन जब आप उसको एज एन एडजेक्टिव यूज करते हो तो उसका नेम चेंज हो जाता है, उसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। ठीक है, मैं डिटेल में इसीलिए कह रही हूँ, बाद में करवाऊंगी, वो बहुत जो है डिटेल में करवाने वाला काम है वर्बल्स का, जेरेंड, पार्टिसिपल एंड इन्फिनेटिव्स का। अभी मैं सिर्फ मेन करवा रही हूँ। अभी मैंने जैसे एक लिखा, स्विमिंग, स्विमिंग इज माई हॉबी। नाउ बॉयज टेल मी, यहां पर मैंने आपको पहले भी बोला कि जब टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब मेन वर्ब का काम करेगी तो वो क्या हो जाएगा? लिंकिंग वर्ब हो जाएगा। और लिंकिंग वर्ब क्या करता है? वो हमेशा प्रेडिकेट को सब्जेक्ट के साथ कनेक्ट करता है। ऐसा ही करता है ना? ऐसा ही करता है ना लिंकिंग वर्ब? तो यहाँ पर स्विमिंग क्या है? Gerund. नहीं, यहाँ पर स्विमिंग क्या है? सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, मेन वर्ब है, क्या है स्विमिंग? व्हाट इज माई हॉबी? स्विमिंग इज माई Swimming. हॉबी। तो स्विमिंग, मैंने आपको, देखो बेटा, लिंकिंग वर्ब में मैंने आपको क्या बोला था? ठहरो, मैं यहां पर आती हूँ। लिंकिंग वर्ब में मैंने क्या बोला था कि जब बी फॉर्म ऑफ वर्ब्स मेन वर्ब का काम करेंगी तो वो लिंक करेंगी प्रेडिकेट को सब्जेक्ट के साथ। समझ आ गई? यहां पर मैंने जो वर्ड लिखा है वो है स्विमिंग। ठीक है, अब यहां पर इज भी लिंकिंग वर्ब है और माय हॉबी प्रेडिकेट है, तो ये इज लिंक कर रहा है माय हॉबी को सब्जेक्ट के साथ। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? व्हाट इज सब्जेक्ट Swimming. इन दिस सेंटेंस? स्विमिंग। अयान अली, आर यू गेटिंग मी और नो? Yes, ma'am. तो स्विमिंग जब सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो सब्जेक्ट हमारे पास हमेशा क्या होते हैं? नाउन होते हैं या प्रोनाउन होते हैं? इज दैट क्लियर? या नाउन होते हैं या प्रोनाउन होते हैं? तो जब हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी वो सब्जेक्ट का काम करेगी यानी नाउन बनेगी, तो हम उसको नाम देंगे, इट्स ए जेरेंड। समझ आई? अब मैं कहती हूं, आई शॉट अ रनिंग डियर। अब मुझे बताइए, यहां पर वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी मैंने किस कॉन्टेक्स्ट में यूज की है? आई इज सब्जेक्ट, शॉट इज द मेन वर्ब, डियर इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आई शॉट व्हाट? अ डियर। नाउ दिस रनिंग इज व्हाट? Adjective. एडजेक्टिव।
व्हेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एडजेक्टिव का काम करेगी तो हम इसको नाम देंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। समझ आई? समझ आई कि नहीं आई बच्चे? हादी, आर यू गेटिंग मी और नो? यस मैम। इज इट डिफिकल्ट और इज इट इजी? सही है मैम। हाँ, और इट इज कंफ्यूजिंग? व्हाट डू यू थिंक? इज इट कंफ्यूजिंग? नो मैम। अच्छा जी, ठीक है, फिर मैं पूछती हूँ आपसे थोड़ी देर में क्वेश्चन। ठीक है आदि? अच्छा जी, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट सेंटेंस। ठीक है, आई एट ए burnt toast. Now Ayan Ali, tell me बच्चे, where is the subject in this sentence? I. I. Saad, tell me what is it? Verb. Verb. Where is the Ma'am, direct verb. object? Where is Toast. where is the Toast. direct object? I ate Toast. what? Toast. Toast Toast. direct object हो गया. अब what is burnt in this sentence? Adjective. Adjective. Adjective है, लेकिन ये है क्या? कौन सी फॉर्म है verb की? Ma'am, Past present participle. participle. प्रेजेंट पार्टिसिपल है, तो जब हमारे पास प्रेजेंट पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, Ma'am, past नहीं मैम, participle. past है, past है. पास्ट पार्टिसिपल है. व्हाट इज पास्ट पार्टिसिपल? वर्ब थर्ड फॉर्म इज कॉल्ड पास्ट पार्टिसिपल. आपने ग्रामर बुक्स में देखा होगा कि जहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी होती है वहां लिखा होता है प्रेजेंट. जहां वर्ब की जी. सेकंड फॉर्म लिखी होती है उसके ऊपर टॉप पर हेडिंग होती है पास्ट. जहां वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है उसके टॉप पर लिखा होता है पास्ट पार्टिसिपल. Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ पर ये जो पास्ट पार्टिसिपल है, ये पास्ट पार्टिसिपल तो है, लेकिन ये यहाँ पर काम किस चीज का कर रहा है? पास्ट पार्टिसिपल एक्टिंग एज एन एडजेक्टिव. ठीक है, आपके पास ऑप्शन इस तरह भी आ सकता है, आपके पास ऑप्शन जस्ट पास्ट पार्टिसिपल भी आ सकता है. जहां पर भी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी ना, तो वो हमेशा आपके पास पास्ट पार्टिसिपल ही होगी, चाहे वो एडजेक्टिव का काम दे या चाहे वो वर्ब की थर्ड फॉर्म के तौर पर वहां पैसिव फॉर्म में यूज हुई हो. इज दैट क्लियर? अच्छा जी, अब हमारे पास थोड़ी सी एक्सरसाइज है, हम वो करते हैं. ठीक है, मैंने कौन सी एक्सरसाइज करवानी है जी? पहले तो हम लिंकिंग वर्ब वाली एक्सरसाइज करते हैं. ठीक है जी बच्चे. हादी, सबसे पहले मुझे बताइए, द स्वॉर्ड वाज द साइन ऑफ द नेक्स्ट किंग ऑफ इंग्लैंड. नाउ जी टेल मैम। मी, वेयर इज द लिंकिंग वर्ब इन दिस फर्स्ट सेंटेंस? मैम वॉज। वाज. हाउ? मैम वो मैम स्वॉर्ड और मैम उसका आगे आगे वाले क्या कहते हैं उसको हम। प्रेडिकेट. प्रेडिकेट. प्रेडिकेट। वो मैम उसको जी, लिंक है। वेरी वेल डन, बिकॉज दिस इंफॉर्मेशन इज अबाउट दिस वर्ड कि ये साइन है नेक्स्ट किंग होने का. अयान अली, जी डिड यू गेट मी? साद, आर यू गेटिंग Yes, मी ma'am. बच्चे? ओके जी. इट अपियर्ड वेरी सिक्योर इन इट्स स्टोनी शीट. शीट किसको कहते हैं? डू यू हैव एनी आइडिया? केस, जो छोटा सा केस होता है जिसमें कोई भी शार्प चीज को रखा जाता है, जैसे तलवार की शीट होती है, चाकू की शीट होती है, जो नाइफ होता है. ठीक है, अच्छा जी. इट अपियर्ड. नाउ अपियर्ड इज अ वर्ब. Do you think it is an action verb and it is telling you the action of this it? It appeared very secure in its stony sheet. What is appeared? It appeared very secure in its stony sheet. This appeared is a linking verb, बच्चे, because it is not telling you about any action. अपीयर्ड ऐसा वर्ब है जो एक्शन वर्ब के तौर पर भी यूज होता है, लेकिन डू रिमेंबर जहां पर ये लिंकिंग वर्ब का काम करेगा वहां पर यू विल कॉल इट अ लिंकिंग वर्ब. यहाँ पर ये लिंक कर रहा है. याद रखिए बच्चे, जो एक्शन वर्ब होता है उसके बाद मोस्टली ऑब्जेक्ट होते हैं. ठीक है, ऑब्जेक्ट जरूर होते हैं जो एक्शन वर्ब्स होते हैं. ठीक, फिर आ गया नेक्स्ट वन, द बेबी इज asleep. जी, साथ, Yes, ma'am. tell me, which Ma'am, verb has been used? Which type of is verb has been used? ma'am linking verb use हो रहा है. Is How? मैम दो बेबी और उसको प्रेडिकेट जो है स्लीप उसको लिंक कर रहे हैं. Very well done. वो बता रहा है ना हमें कि वो बेबी क्या कर रहा है,
The baby is asleep. अच्छा जी, the next one is I am happy to get first position. Ma'am, जी the अयान house अली, smells fantastic. वो मैंने खुद छोड़ा है, वो एंड में पूछूंगी। जी अयान Okay. अली बताइए, आई एम हैप्पी टू गेट फर्स्ट पोजीशन। Ma'am, M. एम, वेरी वेल डन। अब नेक्स्ट वन है द हाउस स्मेल्स फैंटास्टिक। क्या स्मेल्स इज टेलिंग यू अबाउट द एक्शन ऑफ द हाउस? No. इट इज जस्ट क्रिएटिंग अ लिंक बिटवीन द कंडीशन, जो हाउस की कंडीशन है या प्रेडिकेट है, उसका लिंक क्रिएट कर रहा है। तो याद रखिए, इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, आपके पास बी फॉर्म ऑफ वर्ब्स हैं जो लिंकिंग वर्ब के लिए मस्ट हैं। उसके अलावा बिकम, सीम, अपीयर, फील एंड लुक, ये भी आपके पास लिंकिंग वर्ब क्रिएट करती हैं। इज दैट क्लियर? यस और नो बॉयज? Yes, ma'am. Okay. Now let's move to the next one. Now, guys, I told you about the finite and non-finite verbs, right? Now tell me Yes. in this sentence, where is the finite verb and where is the non-finite verb? Ji, the first one I would like to ask Ayan Ali. Ji, Ayan Ali. Yes, ma'am. Gave He is a gave, finite verb or no? ma'am, finite verb. Why? Ma'am, it tells us that he gave me a chair in the past tense. That Very well done. Because it is telling you about the action which happened in the past. टेंस बता रहा है और सब्जेक्ट भी है इससे पहले। वेरी वेल डन। एंड व्हाट इज टू सिट हियर? अयान अली, व्हाट इज टू सिट? टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, infinitive. Infinitive. इन्फिनेटिव। डू रिमेंबर कि एक सेंटेंस में आपके पास एक से ज्यादा वर्ब्स आ सकते हैं, काइंड्स ऑफ वर्ब्स आ सकते हैं। यहाँ पर टू सिट इज इन्फिनेटिव एंड गेव इज द फाइनाइट वर्ब। ठीक है, ये नाम फाइनाइट है। इन्फिनेटिव क्या है? इन्फिनेटिव कौन सा वर्ब है बेटा, कौन सी काइंड है? टू इन्फिनेटिव मैम ये वाला। जी, ये इन्फिनेटिव तो है, लेकिन ये फाइनाइट है या नॉन फाइनाइट है? फाइनाइट है मैम। फाइनाइट में तो बेटा टेंस चेंज होता है, टेंस बताता है। टू सिट आपको कौन सा टेंस बता रहा है? याद रखिए, जहां पर इन्फिनेटिव्स, जेरेंड्स और पार्टिसिपल यूज होंगे वो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होंगे। समझ आ रही है हादी? इन्फिनेटिव नॉन फाइनाइट वर्ब जी है। मैम सही। अब नेक्स्ट नेक्स्ट हादी करेंगे। हादी बताइए, इट मैम ये नॉन वॉज अ फाइनाइट साइट है क्या? टू एक सी आ मिनट, रहा है वो मैम, एक इसमें भी मिनट। टू सी आ रहा है ना। वेरी गुड, ये नॉन फाइनाइट है। और वाज क्या है? मैम वॉज। फाइनाइट है, नॉन फाइनाइट है? ये मैम नॉन फाइनाइट है। नॉन फाइनाइट है। साथ आप बताएं, वाज नॉन फाइनाइट है? मैम ये टेंस नहीं बता रहा तो नॉन फाइनाइट ही हो। यस मैम। अच्छा, एक मिनट ठहरे, मैं इसको चेंज कर देती हूँ। अब बताएं। मैम अब वो है फाइनाइट है। जी नहीं मैम नहीं, एक फाइनाइट। मिनट, एक मिनट ठहरे ठहरे ठहरे। अब मुझे बताएं, अब आपने कहा ये फाइनाइट है, ऐसे ही बोला ना? लेकिन जब जी मैम। वॉज लगा हुआ था तब आपने बोला वो फाइनाइट नहीं है। क्या वो आपको पास्ट टेंस नहीं बता रहा था? बता रहा था मैम। तो फिर वो कैसे नॉन फाइनाइट हुआ? बेटा, जो प्रेजेंट में है, पास्ट में है, परफेक्ट में है, फ्यूचर में है, वो टेंस बताएगा, वो फाइनाइट होगा। और उसके साथ सब्जेक्ट भी होगा। तो समझ आ रही है? जी मैम। अच्छा जी, नेक्स्ट वन मुझे बताएंगे हसाद। साद वांट क्या है? मैम आई वांट। मैम ये फाइनाइट है। फाइनाइट है, क्यों? मैम ये टेंस बता रहा है, आई वांट टू प्रेजेंट। और इससे पहले सब्जेक्ट भी है। दोनों चीजों को आपने जहन में रखना है, सब्जेक्ट भी होता है और उसके बाद फिर वर्ब आता है और वो आपको टेंस बताता है। ठीक है, वो फाइनाइट होता है। अब यस। आगे पढ़िए, टू बाय क्या है? इन्फिनिटिव। इन्फिनेटिव है। तो इन्फिनेटिव क्या होते हैं, कौन से वर्ब्स होते हैं? नॉन फाइनाइट नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट होते हैं। अब जी अयान अली बताएंगे। अयान अली बताइए, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। अब बताइए यहाँ पर आपके पास फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब कौन से हैं? मैम, फाइनाइट वर्ब जो है वो बाइट है और बार्किंग जो है वो
नॉन फाइनाइट है। वेरी वेल डन, शाबाश। जी हादी आप बताएं, ही इज अबाउट टू लीव, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट बताइए। मैम ये नॉन फाइनाइट है। कौन सा? ये अबाउट टू लीव। अबाउट कहाँ से आ गया बेटा? अबाउट तो preposition है। नहीं मैम, अबाउट ही इज अबाउट टू लीव, ये वाला। अच्छा मुझे बताइए, टू लीव आ मैम इसमें भी। हादी एक मिनट, हादी बेटा जी मुझे जी। ये बताइए, फाइनाइट वर्ब कौन सा है? फाइनाइट वर्ब जो टेंस मैम बताएगा। इसमें मैम, हाँ, इसमें फाइनाइट वर्ब कौन सा है जो टेंस बता रहा है आपको कि ये मैम प्रेजेंट टेंस? इज में वेरी होता वेल है। डन, और इससे पहले ही सब्जेक्ट भी है, ठीक है। जी मैम। अच्छा जी, आप बताइए नॉन फाइनाइट कहाँ है इसमें? मैम टू लीव, टू लीव, वेरी वेल डन। टू लीव इन्फिनिटिव। इन्फिनेटिव है जो नॉन फाइनाइट वर्ब है, वेरी गुड। अच्छा साथ, अब आप बताइए बच्चे, इट इज टाइम टू स्टार्ट। मैम इसमें इज जो है इट इज टाइम, तो वो फाइनाइट है। हम्म, और टू स्टार्ट इन्फिनिटिव है, नॉन फाइनाइट। वेरी वेल डन। जी अयान अली, ही वॉज वेयरिंग यस अ मैम। टॉर्न शर्ट। मैम इसमें वॉज फाइनाइट है और वॉज वेयरिंग पूरा, वॉज वेयरिंग क्योंकि वो टेंस वॉज बता रहा है पास्ट कंटिन्यूअस, वेरी वेल डन। एंड नॉन और मैम फाइनाइट कहाँ है? टॉर्न। नॉन फाइनाइट में सिर्फ जेरेंड नहीं आते बेटा, इन्फिनेटिव नहीं आते, पार्टिसिपल्स भी आते हैं। देखें जरा, यहाँ पर कोई पार्टिसिपल है? पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की मैम थर्ड फॉर्म है? टॉर्न, मैम मैंने कहा वेरी टॉर्न। वेल डन, वेरी वेल डन। टॉन जो है वो आपके पास आ गया पास्ट पार्टिसिपल, तो पास्ट पार्टिसिपल नॉन फाइनाइट है, तो आपके पास नॉन फाइनाइट टॉन आ गया, वेरी वेल डन, वेरी वेल डन बच्चे। अच्छा जी, अब आगे इसकी बारी आ गई, हादी की बारी। हादी नेक्स्ट वन बच्चे, जी मैम। ही हैड हिज शूज पॉलिश्ड। मैम इसमें हेड हेड जो है मैम वो है फाइनाइट है, हम्म, और पॉलिश्ड नॉन फाइनाइट है। क्यों? ही हैड इश्यूज। ये क्या, ये कौन सा वो है, कौन सा वर्बल है? इन्फिनेटिव है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल है, वो है इन्फिनेटिव है, क्या है ये? मैं पास्ट पढ़ रहा हूँ। पास्ट पार्टिसिपल है, वेरी वेल डन, ये थर्ड जी फॉर्म मैम। है, वेरी गुड, ये नॉन फाइनाइट है। जी साद आप बताइए, दे गॉट द रूफ रिपेयर्ड। मैम दे गॉट द रूफ फाइनाइट है, और रिपेयर्ड नॉन फाइनाइट है, पास्ट पार्टिसिपल। वेरी वेल डन, लेकिन बच्चे मेरी एक बात जहन में रखिए, जब आपसे फाइनाइट वर्ब के बारे में पूछे तो सिर्फ वर्ब को बीच में ऐड किया करें, नाउन्स को ना डाला करें, ठीक है। गॉट जो है वो फाइनाइट वर्ब है, रूफ नहीं है, द भी नहीं है, ठीक है। रिपेयर्ड इसी तरह आपके पास नॉन फाइनाइट है। फाइंडिंग द डोर ओपन आई वेंट इनसाइड। जी अयान अली। मैम फाइंडिंग जो है वो नॉन फाइनाइट है और वेंट फाइनाइट है। वेरी वेल डन, वेंट आपको पास्ट टेंस के बारे में बता रहा है, और फाइंडिंग आपके पास जेरेंड है जो सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो ये आपके पास आ गया नॉन फाइनाइट वर्ब, वेरी वेल डन। आई होप मैम बच्चे हम आपको, फाइंडिंग को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं यूज कर सकते? क्यों नहीं कर सकते, लेकिन हम प्रेजेंट पार्टिसिपल उसको कहते हैं जब वो एडजेक्टिव का काम देता है, ठीक है। वरना हम कह सकते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, कोई भी कंटिन्यूअस की फॉर्म होगी ना उसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल ही कहते हैं, लेकिन फिर उनमें फर्दर हम उसको डिस्ट्रीब्यूट इसलिए करते हैं ताकि हमें समझ आए और आसानी हो हमें समझने में, तो फिर हम उसकी डिफरेंट नेम्स रखते हैं, जैसे जेरेंड रखा हमने, प्रेजेंट पार्टिसिपल रखा, पास्ट पार्टिसिपल रखा, इन्फिनेटिव रखा, ठीक है। उनके एक्शन पर है कि वो किस किस्म का एक्शन उस सेंटेंस पे परफॉर्म कर रहे हैं, वेरी वेल डन बच्चे। अच्छा एक मैं आपसे थोड़ा सा ये टेस्ट लेना चाहती हूँ, ये कर लो तो फिर उसके बाद आपको भी मैं ऑफ करती हूँ, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द appropriate verbs in the agreement with its subject. Do you remember I explained कि subject verb agreement is necessary in most of the sentences. अगर subject is singular तो आपके पास s और es लगेगा, अगर present tense है, अगर past है तो फिर आपके पास सिंपल वो लगेगा, पास्ट कह रही हूँ, परफेक्ट है तो फिर आपके पास हैज लगेगा, ठीक है, और अगर प्लूरल है तो हैव लगेगा, अगर नेगेटिव है तो डज लगेगा, अगर सिंगुलर है सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इज नेसेसरी। तो आपको मैंने ये सारा कुछ करवाया है, अब मैं सिर्फ इसका अप्रेजल लेती हूँ, ठीक है जी। हादी फर्स्ट वन कीजिए। जी मैम, अ वर्ब, डॉग इज अ फेथफुल एनिमल।
वेरी वेल डन। यहाँ सिर्फ प्रेजेंट जो है टेंस आएगा, क्योंकि हम जनरल एक्टिविटी के बारे में जनरल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो यहाँ सिर्फ इज आएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट वन साथ करेंगे। नाइदर माई पेरेंट्स नॉर रिलेटिव्स डैश प्रेजेंट येस्टरडे एट द पार्टी। were present. वर प्रेजेंट। डू यू रिमेम्बर, मैंने आपको बताया था कि जहां पर येस्टरडे आएगा ये आपके लिए हिंट होगा कि आपने सिंपल पास्ट यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ येस्टरडे आया तो इसलिए आपने वर यूज किया। ईच ऑफ द बॉयज Are डैश honest. ऑनेस्ट। ईच ऑफ द बॉयज आर भी लग सकता है, वर भी लग सकता है, इसमें दोनों लग सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई स्पेसिफिकेशन नहीं दी हुई। द इंटायर क्लास एज वेल एज द प्रिंसिपल डैश एग्री टू द प्रपोजल। Had जी agreed. ये कौन बोला? मैम हैव Have एग्रीड होगा, हैव एग्रीड। दोनों लग सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ हैड इसलिए लगेगा क्योंकि एग्रीड ऑलरेडी उन्होंने पास्ट में दिया हुआ है, तो आपने ये हिंट्स देखने हैं, वरना अगर एग्रीड ना होता ना तो फिर आप जी जो है उसमें सिंपल पास्ट भी लगा सकते थे, ठीक है। डैश होता और एग्री लिखा होता तो फिर आप उसमें सिंपल पास्ट भी लगा सकते थे, और अभी पास्ट परफेक्ट आपने लगाना है। द एंटायर क्लास एज वेल एज द प्रिंसिपल हैड एग्रीड टू द प्रपोजल। जी अब हादी बोलेंगे, अयान अली आपने नहीं बोलना। नाइदर रेसिपा नॉर रीता डैश प्रेजेंट। आर प्रेजेंट। आर, क्योंकि जब नॉर लगता है तो वो दोनों को ही इंक्लूड करते हैं, ठीक है। जी हिज ब्रीफकेस एंड वॉलेट डैश बीन लॉस्ट। Has been lost. हैव बीन लॉस्ट। साद की बारी है, साद आप बताएं। हिज ब्रीफकेस एंड वॉलेट हैज बीन Have और been. हैव बीन। हैव मैम बीन क्यों have लगाया? have हैव क्यों have. लगाया बच्चे? मैम Has- दो हैं तो उसको वेरी इंडिकेट कर वेल रहे डन। हैं. और एंड के साथ जुड़े हुए हैं, तो एंड हमेशा दो चीजों को इकट्ठा करता है, ठीक है, कंजाइन करता है। पॉलिटिक्स डैश हिज Is ब्रेड his एंड बटर। is his पॉलिटिक्स brand सिंगुलर है या प्लूरल है? अयान singular? अली। इज, ठीक है, क्योंकि ये अब प्लूरल की शक्ल तो है लेकिन ये प्लूरल नहीं है, एस लगने का ये मतलब नहीं है। जैसे न्यूज, न्यूज एक वर्ड है, वो सिंगुलर ही काउंट होता है, उसको हम प्लूरल की फॉर्म में नहीं लिखते कि न्यूज आर प्रेजेंट, ये न्यूज आर ब्रॉडकास्ट। न्यूज इज ब्रॉडकास्ट होता है, ठीक है। तो बाज ऐसे नाउन्स होते हैं जिनको हम लगते वो प्लूरल है लेकिन वो होते सिंगुलर है, ठीक है। द कमेटी डैश इशूड इट्स रिपोर्ट। जी हादी। मैम हैज इशूड इट्स रिपोर्ट। हैज। ठीक है, हैज भी लग सकता है, हैड भी लग सकता है। 3 पार्ट्स ऑफ द बिजनेस डैश लेफ्ट फॉर मी टू डू। साद। Were left for me to do. वेरी वेल डन। आइदर ही और आई। आर मैम। आर। Were mistaken. आइदर ही और आई। Were Are, ma'am. mistaken. Yeah, आर भी are. लग Number सकता है. है और वर भी लग सकता है। वेरी वेल डन। ओके बच्चे, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने